Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, students. Today we will read about the unit number 1, the activities of unit 1, class 8. Patient tolerance of Rasul sallallahu alaihi wasallam. Question number 1 है, what do you mean by tolerance? इसका आंसर देखें. Tolerance means to bear pain or hardship with patience. It also means to bear things you do not like. जैसे कि आपने बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ में टॉलरेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, ये वही डेफिनेशन इसका आंसर. Give an example of tolerance from the life of Rasul sallallahu alaihi wasallam. The Rasul forgave those who murdered his cousin Ibn Rabi. आप इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल आपके पास अगर बुक है तो आप कोई और 2-3 एग्जाम्पल दी गई है इस लेसन में जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टॉलरेंस शो किया. एक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वाला वाक़या था, एक उन्होंने जो ना फतह मक्का के मौके पर जो ना अबू सुफियान के साथ जो सलूक किया था वो भी टॉलरेंस किया. कोई सा भी एक इंसिडेंट आप मेंशन कर सकते हैं. Question number 3 है, how did the Rasul sallallahu alaihi wasallam respond to the ill treatment of the people of Taif? The Rasul sallallahu alaihi wasallam said, "O gracious and merciful God, show them the right path, for they do not know what they are doing. They do not recognize me. They do not know I am Muhammad, the prophet of God. Make it known to them that I am their great well-wisher." Question number 4. What did Hazrat Jibrail ask Rasul when he was ill-treated by the people of Taif? On the occasion of trial, Hazrat Jibrail salam asked Rasul, "O Muhammad, speak. If you so wish, I will destroy them." Question number 5. How did the Rasul deal with the enemies at the conquest of Makkah? Abu Sufyan was the worst enemy of Islam before he became a Muslim. At the conquest of Makkah, the Rasul sallallahu alaihi wasallam not only forgave him but also honored him by declaring amnesty for those who took refuge in his house. Question number 6. What did Hazrat Anas bin Malik say about the Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hazrat Anas bin Malik said, "I served the Prophet of Allah for 10 years. By God, he never objected to anything I said or did." Question number 7. What did the Rasul say about the revenge in his last address? In his last address, the Rasul sallallahu alaihi wasallam said, "Revenge for bloodshed, as was the custom in the days of ignorance before Islam, is forbidden. I forgive those who murdered my cousin Ibn Rabi." ये थे जी क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर के आप टोटल क्वेश्चन 7 है और अगर आपके पास बुक है तो आप ऑलरेडी जो ना उसमें से क्वेश्चन आंसर फाइंड कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है. आगे एक्टिविटी बी है, मेक नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स. जो वर्ब्स दिए गए हैं आपने इनसे नाउन बनाने हैं. जैसे डाई है, मिसाल दी हुई है डाई से डेथ. डाई के वर्ब है और अगर आपने इसे नाउन बनाना तो हम इसको लिखेंगे डेथ. इसी तरह टॉलरेट है, टॉलरेट वर्ब है तो इसको जो नाउन है वो क्या होगा, टॉलरेंस. प्रैक्टिस, अब ये प्रैक्टिस PRACTICE प्रैक्टिस ये है वर्ब और इसका नाउन क्या है, PRACTICE प्रैक्टिस. कॉन्क्वर, कॉन्केस्ट, CONQUEST. Destroy, destruction. Object, objection. ये हमने नाउन बनाए. एक्टिविटी सी है, the suffix some means full of, the suffix less means without. They change noun into adjective. अब suffix क्या है,
इसको जो वर्ड्स के ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज एडेड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ये तो स्टार्ट में होता है, वो प्रीफिक्स है, ये सुफिक्स है। वर्ड के साथ ग्रुप ऑफ वर्ड लगा दें, जैसे फुल, मीनिंग है तो मीनिंगफुल, ठीक है। और अगर इसी के साथ मीनिंगलेस, ठीक है। तो फुल का जो मीनिंग होगा, हमने आप इसमें कौन सा सफिक्स ऐड करना है, एक फुल ऐड करना है और दूसरा लेस ऐड करना है। फुल का मीनिंग क्या होगा कि मीन सुफिक्स, सॉरी, सम और लेस यूज करने हैं हमने। जो सुफिक्स है ना, एक हमने यूज करना है सम, और दूसरा हमने क्या करना है, full. The suffix less means, sorry, the suffix some means full of. The suffix less means without. The change noun into adjective. For example, burden है, burden के साथ हम कौन सा suffix ऐड करेंगे, some, तो क्या बन जाएगा, burdensome। इसका, और इसके साथ अगर, जिसका मीनिंग क्या है, मीनिंगलेस। और मीनिंग से क्या हो जाएगा, मीनिंग के साथ अगर हम लेस लगा लेंगे तो मीनिंग लेस हो जाएगा। बर्डन, बर्डन के साथ हमने सम लगाया क्योंकि सुटेबल जो प्रीफिक्स है वो है बर्डनसम, और मीनिंग के साथ मीनिंग लेस लगाया, ठीक है। अब बर्डनसम का मतलब है ज्यादा बोझ जिस पे पड़ जाए, या मीनिंग का मतलब, मीनिंग लेस का मतलब क्या है कि इसका कोई मीनिंग ना हो। लेस लगा के हम इसको क्या बना सकते हैं, ऑपोजिट भी बना सकते हैं। अभी ये सुफिक्स से हम लोग, ये वर्ड हैं तो हमने इसके साथ एडजेक्टिव ऐड किया, जैसे सम और फुल, तो ये इस वर्ड के साथ हमने प्रीफिक्स सम और फुल लगाया तो ये एडजेक्टिव बन गया है। फॉर एग्जांपल, लॉन है तो लॉन के साथ हमने, लॉन का मतलब अकेला है, तो लॉन को अगर हम लॉन के साथ सम सुटेबल कर रहे हैं, या सुटेबल है या लेस है, तो क्या है, लेस। सम है, लॉनसम, लॉन अकेला, लॉनसम अकेला। अब इसके आपने सेंटेंसेस भी बनाने हैं। अब क्वेश्चन आपने क्या कि करना है, क्वेश्चन दिया गया है कि add suffix some and less to the following words to make them adjective। आपने जो दिए गए वर्ड्स हैं इनके साथ लेस और सम लगाना है और इनको एडजेक्टिव बनाना है। आल्सो यूज देम इन सेंटेंसेस, इनको सेंटेंसेस में भी बदलना है, ठीक है, सब सेंटेंस बनाने हैं। अब जैसे लॉन है तो लॉन के साथ लॉनसम आएगा, और इसका सेंटेंस आप, हामिद फेल्ट लॉनसम आफ्टर दैट इंसिडेंट। लॉथ, लॉथ, और लॉथ के साथ क्या आएगा, लॉथसम। The loathsome little creature was disliked by everyone। loathsome का मतलब होता है यानी कि काबिल नफरत, या इसे देख के आपको अच्छा ना लगे। bother, bother के साथ क्या आएगा, bothersome, तकलीफ दा। some diseases are bothersome but not very fatal। trouble, troublesome, trouble के साथ कौन सा सुफिक्स हम ऐड कर रहे हैं, some, troublesome। तो क्या बन गया, ट्रबल का मतलब मुश्किल, और ट्रबलसम का गड़बड़ करने वाला, ये एडजेक्टिव बन गया। The institution expelled the troublesome students from the school। इर्क, इर्क का मतलब गुस्सा दिलाना, और यहाँ इसके साथ हम एक सम लिखेंगे, एक सम, नागवार गुजरना की कोई चीज। It was irksome for the visitor to think of treatment he got। फ्ला, फ्ला का मतलब कोई ऐब होना, कोई खामी होना, कोई डिफेक्ट होना, तो इसके साथ फ्ला के साथ हम लेस लगा देंगे, फ्ला लेस, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि फ्ला का मतलब है इसमें डिफेक्ट, और फ्ला लेस का मतलब इसमें कोई डिफेक्ट ना हो। हिज इंग्लिश इज ऑलमोस्ट फ्लॉलेस। थैंक, थैंकलेस होगा इसके साथ। His thankless person who will never be grateful to anybody। lawless, कानून, और लॉ के साथ, लॉ का मतलब कानून, और लॉ के साथ लॉलेस, ला कानूनियत, इनके कोई कानून ना हो। The lawless crowd burnt the government building। worth, कीमत, worthless। People say that his stories are worthless। hope, उम्मीद, hopeless, नाउम्मीद। The condition of the patient was hopeless। ये थी आपकी एक्टिविटी रिलेटेड टू द suffixes plus sentences।
अगर नेक्स्ट डी एक्टिविटी आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट में से आपकी ब्लैंक्स ली गई हैं, आपको फिल करना है इसको टेक्स्ट के बीच में से, आपके लेसन के बीच में से ली गई। डैश मीन्स टू बी अ पेन और हार्डशिप विद पेशेंस। इसमें कौन से वर्ड मिसिंग है? टॉलरेंस। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज डैश ऑफ टॉलरेंस, मॉडल ऑफ टॉलरेंस। ब्लैंक में क्या आएगा? मॉडल। Hazrat Aisha said that the Rasul never took revenge upon anyone. Like में क्या है? Revenge. The Rasul sallallahu alaihi wasallam went to Dash to preach Islam. Taif. In his last address, Rasul sallallahu alaihi wasallam said, "Dash for bloodshed is forbidden. Revenge." बार बार आपका जो ना वही एक्टिविटी हो रही है। आगे ओरल कम्युनिकेशन में डायलॉग है, ये आपने करना है कि डायलॉग का ये ओरल कम्युनिकेशन आपकी डिस्कस करने के लिए कि आप में इंग्लिश बोलने की एबिलिटी पैदा हो। और इसमें आपने जो ना डायलॉग का टॉपिक है कि two person are discussing why they are quarreling, fighting, and the issue of related to the topic patience. Change the following sentence into negative or interrogative. अब इन सेंटेंसेस को आपने नेगेटिव और इंटरोगेटिव में चेंज करना है। जैसे है ही परचेज्ड अ बुक, ये पॉजिटिव है, आपको इसका नेगेटिव बनाने के लिए ही डिड नॉट परचेज अ बुक, डिड ही परचेज अ बुक। ये एग्जांपल दी गई है, आगे आपने इसी को एग्जांपल को फॉलो करना है और नेक्स्ट इसी तरह करना है। असलम वर्क हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट। Aslam did not work hard to complete the new project. Did Aslam work hard to complete the new project? आगे दूसरा सेंटेंस है he sold mango, अब इसको नेगेटिव बनाना है। He did not sold mango. Did he sold mango? आगे नंबर 3 Noman wrote a book. Noman did not write a book. Did Noman write a book? He fought bravely. Negative बनाए he did not fight bravely. Did he fight bravely? He showed great tolerance. He did not show great tolerance. Did he show great tolerance? ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है। और दो आपको मैं काम से करी होमवर्क जो आपने रिटर्न वर्क करना है, एक ये और दूसरा आपने ये एक्टिविटीज जो थी प्रीफिक्स से सुफिक्सेस से रिलेटेड, जिसके आपने पहले तो सुफिक्स ऐड करना था सम या लेस, वो ऑलरेडी आपकी बुक में गिवन है कि कौन किसके साथ सम लग रहा है किसके साथ लेस लग रहा है। अब वो उन्होंने तो ऑलरेडी लगाया हुआ है, आपको पता है कि किसके साथ लॉन्ग सम है, किसके साथ इल्तिजाम के साथ इर्क के साथ क्या आएगा, ये ऑलरेडी आपको बुक पे गिवन है, सिर्फ आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। ये आपका रिटन वर्क और एक आपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने हैं, ठीक है। ये आपका यूनिट कंप्लीट हो चुका है और सारी एक्टिविटीज़ आपने अच्छे से इसी तरह याद करनी है। आपको अगर स्क्रीन पे इसी तरह इसके नज़र भी आ रहा होगा, साथ सुन भी रहे हो, साथ देख भी सकते हैं, अपने क्वेश्चन से नोट कर सकते हो, अच्छे से अपनी बुक को फिल करके तो फिर आप इसको याद करें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाएगा, तो तब तक आप लोगों ने इस यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट, फिर अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।